ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خبر دیں گے حیدرآباد سے، جہاں پر پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر منتخب ہو گیا ہے۔ میئر کاشف خان شورو اور ڈپٹی میئر صغیر قریشی کی حلف برداری تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میئر اور ڈپٹی میئر سے کمشنر حیدرآباد بلال میمن نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حلف اٹھانے کے بعد کارکنان کی جانب سے بھرپور نعرے بازی کی گئی۔ میرپور خاص میں نامزد میئر اور ڈپٹی میئر سے کمشنر آفس میں کمشنر شفیق احمد میسر نے حلف لے لیا۔ تقریب حلف برداری میں تمام افسران نے شرکت کی ہے۔ کمشنر آفس میں منعقدہ تقریب میں کمشنر میرپور خاص شفیق احمد میسر نے میرپور خاص میں پہلی بار میونسپل کارپوریشن کے نامزد ہونے والے میئر عبدالرؤف غوری اور ڈپٹی میئر جنید بلند سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں ڈپٹی کمشنر زین العابدین، ڈی آئی جی ایس ایس پی میرپور خاص اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حلف برداری تقریب کے بعد موجود کارکنان نے زبردست نعرے بازی کی۔ اس موقع پر میئر عبدالرؤف غوری اور ڈپٹی میئر جنید بلند کا کہنا تھا کہ ہم اپنے حلف کی پاسداری کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی نے جس کام کے لیے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ حلف برداری تقریب کے اختتام پر تمام افسران نے مبارکباد پیش کی اور اجتماعی دعا کرائی گئی۔ لاڑکانہ میں بھی میئر اور ڈپٹی میئر سمیت ٹاؤن چیئرمینز نے بیگم نصرت بھٹو ہال میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ تقریب میں نثار کھوڑو، جمیل سمرو سمیت افسران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ کمشنر لاڑکانہ گھنور لاغاری نے نامزد امیدواروں سے حلف لیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین اور میئر لاڑکانہ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے شکر گزار ہیں کہ انہیں اس عہدے کے لیے نامزد کیا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ اپنے عہدے کا استعمال عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کریں گے، اپنے فرائض کی ادائیگی بھرپور انداز میں کریں گے۔ سندھ بھر کی طرح جام شوروں میں بھی بلدیاتی نومنتخب نمائندوں نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کو کوٹری ڈی سی آفس میں منعقد کیا گیا۔ نومنتخب بلدیاتی نمائندوں سے اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار کوٹری نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں ڈسٹرکٹ کونسل میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمینز نے شرکت کی۔ حلف اٹھانے والے منتخب نمائندوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کی۔ عمر کوٹ ضلع کونسل اور میونسپل کمیٹی نومنتخب چیئرمین وائس چیئرمین کی حلف برداری تقریب میں منعقد کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ایم پی راجہ داریجو نے چیئرمین اور وائس چیئرمین سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں صوبائی وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ، ایم پی اے سید امیر علی شاہ، نواب شہیر تالپور سمیت جیالوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کا کہنا تھا کہ بلدیاتی ادارے سیاست کی نرسری ہیں۔ بلدیاتی نمائندے اپنے علاقے کی عوام کی خدمت کریں گے، جس سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں گے۔ جیکب آباد میں بلدیاتی انتخاب میں کامیاب ہونے والے میونسپل کمیٹی چیئرمین اور وائس چیئرمین کی حلف برداری کی تقریب ڈی سی آفس دربار ہال میں منعقد کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد یوسف شیخ کی زیر صدارت میں تقریب کا آغاز کیا گیا۔ سردار منصور خان پہور کی نگرانی اور ناگہانی وفات کے باعث ڈپٹی کمشنر محمد یوسف شیخ نے چیئرمین اور وائس چیئرمین سے سادگی سے حلف برداری تقریب منعقد کی گئی۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی غلام عباس جھاکرانی، وائس چیئرمین محمد آصف ابڑو، ضلع کونسل چیئرمین طاہر خان کھوسو اور وائس چیئرمین رضوان اوڈھو نے حلف لیا۔ ضلع وہاڑی میں بھی عوام کی سہولت کے لیے پنجاب پولیس کی جانب سے تحفظ مرکز قائم کیا گیا ہے اور عوام کو سہولیات ان کی دہلیز پر دینے کا عزم کیا گیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں حاکم علی بودلہ کی اس رپورٹ میں۔
अस्सलाम वालेकुम। TSI अरूज फातिमा, इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ सेंटर। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर IIG पंजाब की तरफ से बहुत ही वैल्यूएबल इनिशिएटिव है, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और वल्नरेबल अफराद की समाजी, माशी और तालीमी मदद फ्राहम की जाती है। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में पुलिस खिदमत मरकज़ का आगाज़ भी किया गया है, जिसमें आवाम को 15 सहूलियात फ्राहम की जाती हैं, जिसमें जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, करैक्टर सर्टिफिकेट, मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन और व्हीकल वेरिफिकेशन की सहूलत फ्राहम की जाती है। इसके अलावा किसी भी किस्म की गुमशुदगी, ख्वाह वो बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला हो या किसी जुर्म की इत्तला हो, उसके लिए अवाम पुलिस खिदमत मरकज़ तशरीफ़ ला सकते हैं। TSI तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ अरूज फातिमा ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जिला विहाड़ी में तहफ़्फ़ुज़ ऐसा इक़दाम है जिसमें पिसे हुए कमज़ोर अफराद और ख्वाजा सराओं की मुआशी, समाजी और तलीमी मदद फराहम करने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में पुलिस खिदमत मरकज़ भी मौसर अंदाज से काम कर रहा है, जिसमें आवाम को 1-5 सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिसमें पुलिस जनरल वेरिफिकेशन, करैक्टर सर्टिफिकेट, गाड़ियों की वेरिफिकेशन, ख़वातीन की कानूनी रहनुमाई के सिलसिले में सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज़, विहाड़ी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि गुजरांवाला में कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में गुजरांवाला और गुजरात में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीब डार से। जी बिल्कुल, लीबिया से इटली जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती को यूनान के साहिल पर पेश आने वाले हादसे में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बाक होने की इत्तलात सामने आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर FIA ने यहाँ गुजरांवाला और गुजरात में इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। और इस सिलसिला में अब तक जो है गुजरात और जो गुजरांवाला यहाँ पर थाना FIA में 4 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें 3 गुजरात में और जो 1 मुकदमा है यहाँ थाना जो गुजरांवाला FIA है वहाँ पर दर्ज किया गया है। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुजरात के 3 मुकदमात में उसमें 12 इंसानी स्मगलर्स को नामजद किया गया है, जबकि जो गुजरांवाला में मुकदमा सरकार की मदईयत में दर्ज हुआ है वहाँ पर 5 इंसानी स्मगलर्स को जो उनमें जो नामजद किया गया है। FIA काम का कहना है कि जो दर्ज किए गए मुकदमात हैं उनमें जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया और इनको जल्द कानून के कटारे में लाया जाएगा। जी बेशक अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक परिंदों का भी ख्याल रखना सदका जारिया है। खूबसूरत रंगों के छोटे छोटे तोते, कबूतर, खरगोश हर आंख के लिए जज्बे नज़र हैं। उनके ख्याल रखना भी नेमत खुदाबंदी है। आज जी बिल्कुल इसी तरह से शहर लाहौर ट्रेंटन मार्केट चुंगी अमर सुदू में मौजूद है। यहाँ पे परिंदों की एक खूबसूरत सी मार्केट है। हमारा कैमरामैन मुमताज़ इलाही आपको दिखाया तो यहाँ पे छोटे छोटे से जो बर्ड्स रखे गए हैं, छोटे छोटे से तोते रखे गए हैं जिनका ग्रीन कलर है, वाइट कलर है, येलो कलर है, खूबसूरत किस्म के ये परिंदे रखे गए हैं। और हमारा कैमरामैन मज़ीद अगर आपको दिखाए तो ये वो परिंदे हैं जो शहर में जो है वो बच्चे ख़ास तौर पर इसको सराहते हैं, घरों में पाले जाते हैं। इन परिंदों को ख़ासकर खुराक दी जाती है, बादाम दिए जाते हैं और मौसम सरमा में इनको मुख्तलिफ जो अज्जा हैं वो भी इनको फ्राहम की जाती है। और मौसम गर्मा में गर्मी से बचाव के लिए इनको मशरूबात भी दी जाती है और ख़ास तौर पे बादामों का घोटा बना के जो है इनको दिया जाता है, जिससे इनकी सेहत में मज़ीद 4 चांद लगते हैं। इसके साथ ही आपको बताएं तो ये खरगोश भी रखे गए हैं। हमारा कैमरामैन दिखाए खूबसूरत खरगोश हैं जो मुख्तलिफ इक़साम के हैं, छोटे वो बड़े हैं। और आपने तो इनको हमेशा सुरंग में देखा होगा, लेकिन कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी पिंजरे में भी आपको कबूतर नज़र आए या आपको ये खरगोश नज़र आए। इसी तरह से बड़े बर्ड्स की बात करें, बड़े तोतों की बात करें तो यहाँ पे ग्रे कलर के बड़े तोते हैं, वाइट कलर के तोते हैं। इनसे मोहब्बत करना इंसानी फितरत है और खुदावत ताला की जानिब से एक ख़ास तोहफ़ा है। एक चीज़ अनायत की गई है कि आप जितना परिंदों से मोहब्बत करेंगे उतना आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा। और इनसे प्यार, इनसे मोहब्बत करना जो है ख़ास तौर पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इस सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए भी आप परिंदों से प्यार करें। जी
سعدکاباد میں کلرکس ایسوسی ایشن نے استحصالی نوٹیفیکیشن کے خلاف پرامن احتجاج کیا ہے۔ ملازمین نے احتجاجی کیمپ میں شدید نعرے بازی بھی کی۔ ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا کر بلدیہ آفس میں احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ نگراں حکومت سے مطالبہ ہے کہ پنجاب کی تنخواہیں بھی صوبہ بلوچستان کی طرح بڑھائی جائیں۔ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کے دائرہ کار کو وسیع کریں گے۔ ساہوکا میں محکمہ زراعت کے رویے کے خلاف پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن کی پنجاب بھر کی ساہوکا میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے۔ زرعی ادویات کا کام کرنے والے تاجروں نے احتجاجی کیمپ لگایا۔ صدر پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن احمد یار بھٹی کی قیادت میں دکانداروں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھیں اور اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا، جبکہ ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے بتایا کہ محکمہ زراعت کے عملے کی طرف سے بے جا چھاپوں اور جرمانوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے آئے روز دکانوں کو سیل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ بے جا جرمانوں سے پیسٹی سائیڈ سے وابستہ افراد کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایسے اقدامات سے ہمارے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت پیسٹی سائیڈ ڈیلر سے وابستہ افراد کے مسائل کی طرف توجہ دے، ورنہ اس سے منسلک طبقہ مزید مسائل اور پریشانی کا شکار ہو جائے گا۔ احتجاج میں احمد یار اسلم رحمانی، اکرم نظامی، عدنان بلال سمیت دیگر کئی شرکا نے پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن کی جانب سے مزید کہا ہے کہ اگر محکمے نے اپنے رویے کو درست نہ کیا تو کاروبار غیر معینہ مدت کے لیے بند رکھا جائے گا اور اس کے ذمہ داران محکمہ زراعت کے افسران ہوں گے۔ محکمہ زراعت کے رویے کے خلاف پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن کی پنجاب بھر کی طرح ملتان میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ زرعی ادویات کا کام کرنے والے تاجروں نے احتجاجی ریلیوں میں بھرپور شرکت کی ہے۔ پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے بتایا کہ محکمہ زراعت کے عملے کی طرف سے بے جا چھاپوں اور جرمانوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے آئے روز دکانوں کو سیل اور بے جا جرمانوں سے پیسٹی سائیڈ سے وابستہ افراد کو تنگ کرنا بند کیا جائے۔ پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اگر محکمے نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو کاروبار غیر معینہ مدت کے لیے بند رکھا جا سکتا ہے اور اس کے ذمہ داران محکمہ زراعت کے افسران ہوں گے۔ خبر دیں گے آپ کو مانا والا سے، جہاں پر زرعی ادویات کے ڈیلرز نے ہڑتال کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے چودھری ماجد بھٹی جی۔ بتائیں وہاں کا احوال۔ چودھری ماجد بھٹی کیا ہے؟ آج زرعی ادویات کے جتنے بھی ڈیلر ہیں انہوں نے ہڑتال کی ہے۔ اسی طرح مانا والا میں بھی ہڑتال ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مانا والا کے پریزیڈنٹ عثمان۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ ہڑتال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو مطالبہ پہلے تو یہ ہے، پورے پنجاب میں جس طرح پیسٹی سائیڈ ڈیلر ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی ہے، ہم نے بھی مانا والا میں پیسٹی سائیڈ ڈیلر ایسوسی ایشن مانا والا میں ہڑتال کی ہے، محکمہ زراعت کے ظالمانہ اقدام کے خلاف۔ کہ پہلے یہ سیمپل وغیرہ ہمارا محکمہ زراعت کرتا تھا، اس وقت یہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ظالم وزیر اعلیٰ آیا ہے، اس نے ایک ٹاسک فورس بنا دی ہے جس میں اے سی ڈی سی بیوروکریٹ محکمہ زراعت کے علاوہ پٹواری تحصیلدار قانون جس کو کوئی کام نہیں ہے وہ ہماری طرف بھیج دیا ہے۔ اور اب ہم محکمہ زراعت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ظالمانہ اقدام کو بند کیا جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ 90% لوگوں کے روزگار وابستہ ہیں۔ ہم اربوں روپے کی انویسٹمنٹ محکمہ زراعت میں پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح یہ کاروبار کو بند کرواتے رہے یا ہمیں تھریٹ کرتے رہے تو یہ کاروبار مفلوج ہوگا، بند ہو جائے گا اور کاروبار بند ہو جائیں گے اور لوگوں کا روزگار بند ہو جائے گا۔ اور ملک میں پہلے ہی بہت سارے بحران ہیں، اس وقت اگر یہ بحران شروع ہو گیا، خوراک کا بحران آ جائے گا جس سے پورا ملک مصیبت میں پڑ جائے گا۔ ہم بے لوث پاکستان اور پنجاب کے کسان زمینداروں کی خدمت کر رہے ہیں، ہماری خدمت کو فراموش نہ کیا جائے۔ ہم اس ظالمانہ اقدام کے خلاف بھرپور احتجاج کرتے ہیں، ہم پورے پنجاب میں ہڑتال کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام بند نہ کیا گیا تو ہم تا دم مرگ ہڑتال رکھیں گے۔
जी बिल्कुल, उस्मान का यही कहना था कि ये जो जालमाना हमारे ऊपर लोग बैठाए गए हैं, इनको पता नहीं है। पहले तो महकमा ज़राअत के लोग आते थे, वो सैंपल लेते थे। अगर वो अहदियात में कोई गलत होता था तो हमारे पास हम पर FIR दे देते थे, लेकिन अब हमारे बगैर सैंपल्स के FIR दी जाती है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। और अगर मज़ीद इसी तरह रहा तो हम कारोबार बंद कर देंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में किसान जो है उसकी ज़रिया आमदन में कमी आएगी और मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और हमारा ये ज़ालमाना लोगों से हमें बचाया जाए, और ये जो हमारे ऊपर ज़ालमाना तशद्दुद किया जा रहा है, इसे बंद किया जाए। जी। हारूनाबाद पेस्टिसाइड और सीड डीलर एसोसिएशन की तरफ से शटर डाउन हड़ताल जारी है। हड़ताल पुलिस, स्पेशल ब्रांच और महकमा ज़राअत की तरफ से हरासगी और कार्रवाइयों के खिलाफ की गई है। पुलिस, स्पेशल ब्रांच और महकमा ज़राअत की तरफ से पेस्टिसाइड और सीड डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के खिलाफ सीड और पेस्टिसाइड एसोसिएशन की तरफ से शटर डाउन हड़ताल की गई। सीड और पेस्टिसाइड एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि महकमा ज़राअत इन्हें पुलिस और स्पेशल ब्रांच के ज़रिए हिरासा कर रहा है। क्वालिटी चेक की आड़ में उनके खिलाफ नाजायज़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एसोसिएशन ने निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी और निगरां वज़ीर ज़राअत से नोटिस लेकर हज़ारों ख़ानदानों के कारोबार तबाह होने से बचाने का मुतालबा किया है। मियाचुनू में 2 मई को लड़की के कत्ल के मामले में पुलिस की जानिब से मुलजिम को रिलीफ दे दिया गया। मुतासिरा ख़ानदान की मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आज़म खान से। जी राना आज़म, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ मियाँ चन्नू के नवाही इलाका 103-15L में, जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ 2 मई को। तो मेरे साथ इनकी वालदा मौजूद है, आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी अम्मा जी, जो ਤੁਹਾਡੀ बेटी का कत्ल होया ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी वो कत्ल हो गई जी, बरामद हो गई 2 दिन बाद जी। थानेदार आ गया, उन्हें बरामदी की थी थाने। मेरा बेटा गया, उसने FIR सही नहीं कटी गई। 2 दी कटनी आई, एक दी उन्हें कटी। साढ़े अगे झूठ मारदा रहा। 7वें दिन 6वें दिन उन्होंने FIR वकील ते लै गए। अगे एक बंदा लिखिया सी, दूसरा बंदा नहीं। असी जी DPO ते गए हैं, उथे मियाँ चन्नू गए हैं। साडा हक नहीं पिया हुंदा, साडा जी सानू हक मिलिया जावे। साडी ते बहुत सानू हक मिलिया जावे, मेहरबानी मुजरम दूसरा फड़िया जावे जी, दूसरे फड़िया जावे। लड़की के भाई भी मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी भाईजान, जो ਤੁਹਾਡੀ बहन नाल होया वाकया ते की ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? भाईजान, साडी हमशीरा ਨੂੰ बेदर्दी ਨਾਲ कत्ल ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ कत्ल ਕੀਤਾ है। बरामद होई है। थानेदार मौके ते आया। थानेदार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ। थानेदार ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕੱਟਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ थानेदार ने आख्या जी ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ FIR लिखी गई है। ਅਸੀਂ अनपढ़ चिट्टे बंदे हैं जी, सानू कोई पढ़े लिखे असी नहीं है। 5वें-6वें दिन पहले थानेदार को दरखास्त FIR की दरखास्त मंगी है, नकल मंगी। हो सकता है तुसी की करनी है। लिहाजा जो 5-6 दिन गुजरे ने असी FIR की नकल ली, ਉਹਦੇ ਤੇ एक बंदा ही नामजद करके उसनू अदालत च पहुंचाया। भाईजान, पुलिस की कारगर ते मुतमईन हो तुसा? नहीं जी, थानेदार ने साडे नाल बहुत ज्यादती की है। थानेदार बल्कि ये कहंदा सी मैं तुहाडे ते 751 करके तुहानू अंदर कर देंगा। असी डरदे फिर थाने नहीं गए। फिर असी जी DSP ते साडियां पेशियां पियां। DSP साहब दे उत्ते सियासी जोर बहुत आ गया जी। वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बंदे जेड़े इन्हां बंदे नाल तुसी पंगा ना लवो, ये बंदे तुहाडा नुकसान करनगे। लिहाजा सानू इंसाफ चाहिए। DPO साहब तू भी, RPO चीफ साहब तो भी जी, वजीर आजम साहब तो भी जी। असी जी बहुत गरीब आदमी है, साडे नाल ज्यादती हो रही है, साडी कोई नहीं सुन रहा जी। तुसी वजीर आजम साहब जो भी हैं जी, साडे वड्डे हैं जी, ये साडा इंसाफ सानू। लिहाजा साडा जो मुजरम मुनव्वर इकबाल बाहर फिर रहा, सानू धमका रहा, उसनू गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, जो हमारी मुतासरीन से बात हुई उनका ये कहना है कि RPO DPO खानेवाल, RPO मुल्तान से हमारी यही अपील है, गुजारिश है कि मुलज़िमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ओकाड़ा से खबर देंगे जहां पर ख़वातीन पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के हक़ाइक़ सामने आ गए हैं।
पुलिस के मुताबिक वीडियो खुद साख्ता और झूठ पर मबनी है, जो किसी नामालूम मुकाम पर बनाकर ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए वायरल की गई है। थाना ए डिवीज़न पुलिस की जानिब से मुकम्मल तहकीक की गई है। मुकामी पुलिस के मुताबिक बुशरा बीबी वगैरह फरीक ने साजिद नामी शहरी के मकान पर कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर थाना ए डिवीज़न में साजिद इकबाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि अदालती हुक्म के मुताबिक बुशरा बीबी की मुद्दत में साजिद और नदीम वगैरह के खिलाफ मुकदमे में मुखालिफ बयानिया भी दर्ज हो चुका है। पुलिस के मुताबिक 100% मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कब्ज़ा माफिया की जानिब से साजिद के घर पर फायरिंग भी की गई, जिसकी जद में फायरिंग लगने से साजिद की अहलिया शदीद जख्मी भी हुई। पुलिस का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकपतन में जायदाद के तनाज़े पर ससुर, बीवी और साले को कत्ल करने वाले सफाक मुलजिम दरिया सतलज के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरे कत्ल की वारदात में मुलव्विस सफाक मुलजिम ज़हीर बलूच को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम ने शामगढ़ इलाका थाना चकबेदी में जायदाद के तनाज़े पर 3 अफराद को कत्ल किया था। पुलिस ने तहरे कत्ल में मुलजिम ज़हीर को मंजनाबाद के इलाके में दरिया सतलज के अंदर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम वारदात के बाद रूपोश हो गया था। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया भी तब्दील कर लिया था। तहरे कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को तारीफ़ी सर्टिफिकेट और नकद इनामात भी दिए गए। कबीरवाला के नवाही इलाके कोहीवाला के मदरसा इमरान हैदर शिकोरिया में जलसे दस्तार फजीलत की तकरीब का एहतमाम किया गया। बाबरकत महफिल से उलमा इकराम सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल्ला रज़ा शकूरी, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, मेयर मोहम्मद महमूद, मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन वपारी, हाफिज़ हिमायत अली, अल्लामा कारी मज़हर हुसैन रिजवी, हाजी लियाकत हुसैन, मुफ्ती मसूद अहमद ख़ान नक्शबंदी ने भी खिताब किया। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की तालीमात के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। तरक्की और खुशहाली कुरान मजीद पर अमल करके ही हासिल कर सकते हैं। जबकि तकरीब के आखिर में कुरान मजीद की तालीम मुकम्मल करने वाले 8 तलबा में मेहमान खुसूसी अल्लाह दित्ता नाइश ने इनामात और तोहफ़े तकसीम किए। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले साबिक़ कौंसलर नसीर अहमद ठेकेदार को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सफदराबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया है। सफदराबाद के महल्ला चराग़ां कॉलोनी में 5 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर अहल खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी और तलाई ज़ेवरात लूट कर फ़रार होने लगे तो सफदराबाद के नौजवान सियासी और समाजी शख्सियत साबिक़ कौंसलर नसीर अहमद ठेकेदार ने डाकुओं को रोकने की कोशिश की तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग करके नसीर अहमद को मौत के घाट उतार दिया। वाक़े पर अहले इलाका ने नसीर अहमद की मैयत को मेन रोड पर रखकर एहतजाजी धरना दिया। पुलिस की मुलज़मान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर वर्षा ने एहतजाजी धरना ख़त्म करके नसीर अहमद को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में मकामी जनाज़ागाह में नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया। लेकिन ताहम अभी तक पुलिस डाकुओं की गिरफ्तारी में मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है। इससे कबल भी नसीर अहमद के 2 सगे चचाजाद भाई दौरान डकैती कत्ल कर दिए गए थे। अहले इलाका ने IG पंजाब से मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी करके मुलज़मान को सख्त तरीन सज़ा देने का मुतालबा किया है। ईद कुर्बा के करीब आते ही बहावल नगर में मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला हो गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने मंडी का रुख कर लिया है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए लोग पुरजोश हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद वर्क। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। मुल्क की तरह बहावल नगर में भी ईद कुर्बा मनाने की तैयारियां जो हैं वो पूरे जोशो खरोश से जारी हैं। मैं मौजूद हूँ बहावल नगर की मंडी मवेशी पर, जहां पर मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जानवरों के रेट्स के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। जी सर बताइएगा। जी 7 बजे आए हैं जी, कोई जानवर बना नहीं जी। अगर जानवर होंदा जी लख दा वो जी 1.5 लाख मंग लेंदे जी। महंगाई दी जेना ते मेहरबानी जी थोड़ी जी महंगाई घटाई जावे जी, क्योंकि आसानी ना हर बंदा कुर्बानी कर लवे जी। जी जैसा कि आपने खरीदार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम सुबह से आए हुए हैं, जो हमें जानवर पसंद आ जाता है तो उसके रेट्स हमें मुनासिब नहीं लगते और सारा दिन हो गया हम फिर के थक चुके हैं।
اور حکومت وقت سے اپیل ہے کہ خدارا اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ جو عام آدمی ہے وہ قربانی آسانی سے منا سکے. جی لڈن میں مین روڈ وہاڑی پنجاب کالج کے قریب بس سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے الٹ گئی ہے. ریسکیو 1122 کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی ایمبولینسز، ریسکیو وہیکلز اور فائر ٹینڈرز روانہ کر دیے گئے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر بھی وہاں پر موجود تھے. معجزے کے طور پر تمام مسافر محفوظ رہے. بس میں سوار 2 خواتین اور 1 شخص معمولی زخمی ہوئے. منڈی بہاؤدین میں منشت فروشوں اور ڈکیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. دوران گشت شمشاد حسین عرف شوٹر سابق ریکارڈ یافتہ مجرم گرفتار کر لیا گیا ہے. مجرم سے دوران تفتیش چرس برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ رضا الہی بٹ نے کہا ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے روزانہ کی بنیاد پر گشت کو بڑھا دیا گیا ہے. انہوں نے بہت جلد پولیس ان ڈاکوؤں اور چوروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کریں گے. شہرنامے کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر دیں گے آپ کو خانیوال سے، جہاں پر ہسپتال انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ضلع خانیوال کی سب سے بڑی علاج کا THQ کے ایمرجنسی ٹراما سینٹر اور دیگر وارڈز میں ادویات کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. شہری ادویات مہنگے داموں پرائیویٹ میڈیکل اسٹور سے خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں. رپورٹ کریں گے صلاح الدین مرزا. ضلع خانیوال کی سب سے بڑی علاج گاہ DHQ اسپتال میں انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ایمرجنسی سمیت دیگر مختلف وارڈز میں ادویات کا بحران سنگین ہو گیا. شہری اپنے پیاروں کے علاج معالجے کے لیے پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے مہنگے داموں ادویات خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ DHQ اسپتال میں ادویات کی کمی اور سہولیات کے فقدان پر شہری اسپتال انتظامیہ اور CO ہیلتھ ڈاکٹر عبدالمجید بٹی کے خلاف پھٹ پڑے. یہ دوائی میں ابھی تقریباً 1100 روپے کی دوائی ہے تقریباً جو ابھی لے کے آیا ہوں. ہمارا مریض نیچے گرا ہوا ہے، اس کے لیے ویل چیئر نہیں ہے، کھیریں ٹوٹی پڑی ہیں ساری اندر. ہمیں لے کے گئے، ہم اٹھا کے وہ اتنی پور وارڈ میں سیڑھیوں چڑھ کے ہماری حالت بری ہو. یہ مسئلہ صبح سے یہاں کوئی بھی نہیں ہے سننے والا. شہری کہتے ہیں اسپتال انتظامیہ اپنے آفس سے 6:15 کی رپورٹ کرنے میں مصروف ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ایمرجنسی سمیت دیگر وارڈز میں ادویات کی قلت ضلعی انتظامیہ سمیت نگران حکومت کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. شہریوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے اسپتال میں ادویات کی قلت اور سہولیات کے فقدان پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی پھلوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے لیچی کا پھل بھی پک کر تیار ہو چکا ہے. اس کا پھل صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. سیالکوٹ گونڈل کے مقام پر ایشیا کا سب سے بڑا لیچی کا باغ موجود ہے، جس کا رقبہ 250 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے. مزید دیکھتے ہیں سیالکوٹ سے نمائندہ میٹرو ون نیوز شہزاد علی کی اس رپورٹ میں. لیچی کا پھل صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. سیالکوٹ ہیڈ مرالہ کے علاقہ گوندل، جہاں بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا لیچی کا باغ موجود ہے. لیچی کا پھل پک کر تیار ہو چکا ہے. اس باغ کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا رقبہ تقریباً 250 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے. اس میں 1000 سے زیادہ لیچی کے پودے لگائے گئے ہیں، جن میں 3 قسم کی لیچی پائی جاتی ہے، جن میں صحرائی، بدانہ اور گولا شامل ہے. اس حوالے سے عوام کا کہنا ہے تو یہ ہیڈ مرالہ کا بہت مشہور باغ ہے لیچی کا. تو یہاں پر 3 قسم کی لیچی پائی جاتی ہے، بدانہ، صحرائی اور گولا. تو یہ لیچی ذائقے میں بہت اچھی ہے. اس کی سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو 500 سے زیادہ افراد اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہیں. خوبصورت ڈبوں میں پیکنگ کے بعد اس کو دوسرے شہروں میں بیچ دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درختوں پر ہزاروں کے حساب سے لائٹیں لگائی گئی ہیں جو ایک کھٹک نامی پرندے سے اس کے پھل کی حفاظت کرنے میں مدد کرتی ہے. لیچی کا پھل کھانے میں بہت میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے، اور اگر بات کی جائے اس پھل کی درآمد کی تو FIA گجرات نے کشتی حادثے میں ملوث ایک ملزم وزیر آباد کے نواحی علاقے پنڈوری خورد سے گرفتار کر لیا ہے. ملزم شبیر نے پنڈوری خورد میں باقاعدہ ایک ڈیرا بنا رکھا تھا اور وہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث تھا. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والے کئی ایک نوجوانوں کو لیبیا کے مرکزی ایجنٹوں کو بھیجتا تھا، اور وہاں سے لیبین ایجنٹس نے نوجوانوں کو اٹلی کے لیے روانہ کیا. ملزم کو مخبر کے اطلاع پر وزیر آباد سے گرفتار کیا گیا. ملزم کشتی حادثے کے بعد روپوش تھا. ملزم شبیر احمد ولد محمد اسلم پنڈوری خورد کا رہنے والا تھا، جس پر مقدمہ FIA میں درج ہے.
तोसा शरीफ थाना रेदरा की हदूद में बासर शख्स ने 300 रुपये की चोरी के शुबे पर जहनी माजूर नौजवान को बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। तोसा शरीफ थाना रेदरा की हदूद में ये इंसानियत सोच वाक़या पेश आया है। बासर शख्स ने चोरी के शुबे पर जहनी माजूर नौजवान को बांधकर तशद्दुद किया, जिसके बाद मुलजिमान ने जहनी माजूर नौजवान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद DPO के नोटिस लेने के बावजूद थाना रेदरा पुलिस बासर मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। शेरगढ़ में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाक़े भर से 16 टीमों ने हिस्सा लेकर खिलाड़ियों ने अपने अपने फ़न का मुजाहरा किया है। पंजाब की सकाफत और पहलवानों के दिलचस्प खेल कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाइनल कबड्डी मैच लगारी कबड्डी क्लब 23-1EL और 5-1EL की टीमों के दरमियान खेला गया। खिलाड़ियों के मैदान में उतरते ही पंडाल में बैठे तमाशाइयों ने भरपूर तालियों के साथ उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों ने मैच में अपने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए धोबी पटरे भी मारे, जिस पर तमाशाइयों ने दिल खोल कर दाद दी। खिलाड़ियों के कांटेदार मुकाबले के बाद लगारी कबड्डी क्लब 23-1EL ने जीत अपने नाम कर ली है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए टूर्नामेंट इंतजामिया की तरफ से कप और गोल्ड मेडल भी दिए गए। ओकाड़ा पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन में संगीन मुकदमात में मतलूब 13 इश्तिहारी मुलजिम, 4 बदनामे ज़माना मंशियात फरोश, साउंड सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 अफराद जबकि नाजायज़ असलहा रखने वाले 10 मुलजिमान समेत शराब फरोख्त करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ वकास चौधरी की इस रिपोर्ट में। नए तैनात होने वाले SHO थाना सदर जफर इकबाल महार ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ चेहरा तंग कर दिया। संगीन मुकदमात में मतलूब 13 इश्तिहारी मुलजमान, 4 बदनामे ज़माना मंशियात फरोश, 3 साउंड सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद, नाजायज़ असला रखने वाले 10 अफराद और शराब फरोख्त करने वाले बदनामे ज़माना मुलजमान को धर लिया गया। SHO थाना सदर जफर इकबाल महार ने तहसील प्रेस क्लब के सदर ज़हूर अहमद शहीन, चेयरमैन इजाज ताहिर कादरी, वाइस चेयरमैन हाजी असलम सज्जाद, जनरल सेक्रेटरी साजिद हुसैन चौधरी और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं अपने कमांडर DPO उकाड़ा मंसूर अमान राना के अहकामात और SDPO सर्कल मैडम मनज़्ज़ा करामत की ज़ेरे निगरानी बदनामे ज़माना मंशात फरोशों, इश्तिहारी मुलजमान, नाजायज़ असला रखने वालों समेत मुख्तलिफ क्राइम में मुलव्वस अफराद को जेल भिजवा चुका हूँ और इनका मजीद कहना था कि कानून से कोई बालातर नहीं। मेरी अव्वलीन तरजीह अवाम के मालो जान की हिफाजत करना है और जराइम पेशा अफराद का किला कमा करना है। सादिकाबाद में अब्दुल तनवीर गरीब और माजूर शख्स 7 साल से खतरनाक बीमारी एम्बुलेंसेशन से लड़ रहा है और वो किसी मसीहा के इंतजार में है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आतिक गोराई की इस रिपोर्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक गुराया। इस वक्त मैं सादकाबाद एक ऐसे घर में मौजूद हूं जहां पर 7 साल से एक ख़तरनाक बीमारी के साथ लड़ते हुए एक गरीब आदमी, मज़दूर आदमी और जिसके साथ साथ वो बेचारा मज़दूर भी है। एक टांग से वो पहले मज़दूर है, उसके दूसरी जो उनकी टांग है एक ख़तरनाक बीमारी है एम्बोलाइजेशन, जिसमें वो मुब्तला है 7 साल से। 7 साल से वो किसी मसीहा के इंतज़ार में है। इसका अगर इलाज की बात करें तो इतना वो कॉस्टली इलाज है जिसके ऑपरेट का ख़र्चा तो एक अलहदा है, जिसकी मेडिसिन तकरीबन 5 लाख के करीब उसकी मेडिसिन है। तो चलते हैं तनवीर के पास जो किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहा है। आइए इनसे जानते हैं कितने से इस बीमारी से मुब्तला है और वो हुकूमत वक्त से वो क्या मुतालबा करते हैं। जी भाई क्या हाल है? अस्सलाम जी, ठीक कितने ठाक। अरसे से आप इस बीमारी में मुब्तला हैं? तकरीबन 7 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो 7 साल से घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस ये ऐसे ही है। मकान अपना है किराए का है? मकान वालिद का है, उसमें रहते हैं, वालिद ने दिया है। तो ये आपका जो ये इलाज है, अभी डॉक्टरों से आपने रब्ता किया तो कितना खर्च कह रहे हैं वो इसका? इसका 4,76,000 रुपया मेडिसिन का खर्चा बता रहे हैं। इससे ज़्यादा होने कहते हैं कि होगा। तो 7 साल में आपने जो इलाज करवा चुके हैं तो तकरीबन कितने पैसे आप लगा चुके हैं? तकरीबन इससे कहीं ज़्यादा मैं पैसे लगा चुका हूँ। तो अब आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं?
यही मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि भी मेरा इलाज करवाया जाए हुकूमती सतह पर। जी, तनवीर का ये कहना है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3 और मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मेरे घर में राशन तक नहीं है, और ये किसी मसीहा का इंतज़ार करते करते इन्होंने 7 साल का वक्त जो गुजार लिया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से उनकी ये दरख्वास्त है, ये उनकी अपील है कि खुदारा के कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि मेरा इलाज हो सके। जी आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि पिंड दाद खान में तहसील प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत सीनियर सहाफ़ी यूनुस शहबाज और अख्तर अराई ने की। रैली में तहसील प्रेस क्लब के सहाफ़ियों समेत इलाका भर के लोगों ने शिरकत की। रैली में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए नारेबाजी की गई। रैली के शुरका ने अमरीका के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए हुकूमत से आफिया सिद्दीकी की रिहाई के इक़दाम की अपील की। रैली हिरनपुर ता पिंड दाद खान से होती हुई खेवड़ा में इख्तिताम पजीर हुई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भक्कर पुलिस के बहादुर सपूत शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हयात खान को खराज तहसीन पेश किया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने थाना चांदनी चौक के नाम तब्दील करके शहीद हयात खान के नाम से मंसूब करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं, जबकि शहीदों SHO थाना अली भक्कर, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हयात खान की बाहिम्मत बेवा और बच्चों ने DPO भक्कर मोहम्मद नवीद के हमरा शहीद हयात खान थाने का इफ्तिताह किया है और लाजवाल कुर्बानी जो जवामर्दी और हिम्मत के पैकर हयात खान साहब सब इंस्पेक्टर SHO सिटी भक्कर नमाज ज़ोहर अदा करके बावजू मस्जिद से निकले ही थे कि मस्जिद के बाहर डकैतों से नबरदाजमा होते हुए फ़र्ज़ की राह में शहीद हुए थे। शहरनामे से फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए सिर्फ मेट्रो 1 न्यूज़।